Good morning, students, and welcome to your e-learning class again. As you know, we have started lesson 7 division last week. We have done activity 1, 2 and 3. Today, we will do activity 4 and activity 5 of this lesson. Let us start the concept of division beyond multiplication facts. Here, question is 38 divide 3. 38 is the dividend and 3 is the divisor. So, write the dividend and divisor in the correct places. तो 38 को हम अंदर लिखेंगे and 3 को बाहर रखेंगे. So, now we have to take tens place digit, that is 3. तो 3 के टेबल पर 3 कहाँ पर आता है? 1 पे. So we have to 1 write here and 3 को हम 3 के नीचे लिखेंगे. Now subtract this. 3 minus 3, 0. Now bring down 8 and divide. अब 3 के टेबल पर 8 नहीं आता. So we have to find that number जो कि 8 से छोटा और सबसे ज्यादा नियर होगा. तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. अब 9 तो ग्रेटर हो गया, तो 3 3 जा 9 तो लिखना नहीं हमें, तो हम 2 पर लिखेंगे. 3 2 जा 6. नाउ 8 minus 6, 2. So quotient is 12 and remainder is 2. That is your answer. I am taking H part. 72 divide 7. So first write the dividend and divisor in the correct places. 72 dividend है तो वो अंदर आएगा. 7 divisor है तो हमें 7 से divide करना है. So now take tens place digit, that is 7. तो 7 के टेबल पर 7 कहाँ पर आता है? 1 पे. So we have to write here 1. 7 1 जा 7. 7 minus 7 is 0. Now bring down 2. 7 के टेबल पर 2 नहीं आता और तो 7 1 जा 7 ही ग्रेटर है, तो इट मीन ये 0 पे जाएगा. 7 0 जा 0. So 2 minus 0 is 2. So quotient is 10 and remainder is 2. This is your answer. Now let us understand the concept of division beyond multiplication facts, dividing 3 digits number. Here I am taking question number 1 of activity 5, that is 276 divide 2. 276 is the quotient here and 2 is the divisor. So first write the dividend and divisor in the correct places. Now take 100 place digit. So 2 के टेबल पर 2 आता है 1 पे. So that 2 1 जा 2. Now subtract it. 2 minus 2 is equal to 0. Now bring down 7, which is at the tens place. So अब 2 के टेबल पर हम 7 को चेक करेंगे. 7 तो आता नहीं है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6. तो हम 2 3 जा 6 को लिखेंगे. तो 3 आएगा क्वोशिएंट प्लेस में एंड 6 आएगा 7 के नीचे. Now subtract this. 7 minus 6, 1. Now bring down 6. Now अब 2 की टेबल पर 16 चेक करना है. So 2 8 जा 16. Now subtract it. 6 minus 6, 0. 1 minus 1, 0. So quotient is 138 and
remainder is 0. Answer. Now I am taking question number 5, that is 967 divide 8. So first write the dividend and the divisor in the correct places. So 967 अंदर आएगा and 8 बाहर आएगा. So we have to take 100 place digit. अब 8 के टेबल पे हमें 9 चेक करना है. अब 9 तो नहीं आता. So it means 8 1 जा 8. वो लिखेंगे हम क्योंकि 9 की नियर 8 है. So 9 minus 8 1. Bring down 6 which is at the 10th place. पहले हमने 100 प्लेस वाले डिजिट को लिखा, फिर हमने 10th प्लेस वाले को लिखा. नाउ 8 के टेबल पर 16 आता है. 8 2 जा 16. 6 minus 6 is equal to 0. 1 minus 1 0. So now write down 7. अब 8 के टेबल पर 7 नहीं आता और जो 7 है वो 8 से छोटा है. सो इट मीन्स ये 0 पे जाएगा. 8 0 जा 0. So 7 minus 0 is equal to 7. So quotient is 120 and remainder is 7. This is your answer. Now we are doing question number 2. Aisha spends rupees 96 on 8 pencils. How much did she pay for each pencil? इसका मीनिंग क्या है? आयशा ने 8 पेंसिल्स के लिए 96 रुपीज़ खर्च किए हैं. तो फॉर ईच पेंसिल हमने निकालना है, यानी कि 1 पेंसिल के लिए उसने कितना मनी स्पेंड किया है. तो जब भी हमें 1 की वैल्यू निकालनी हो तो हमेशा डिवाइड करना है. सो ये क्वेश्चन जो है, दिस जो स्टेटमेंट सम है दैट इज ऑफ डिवीजन. सो स्टेटमेंट क्या बनेगी? आयशा स्पेंड रुपीज 96 ऑन 8 पेंसिल. तो स्पेंड मनी ऑन 8 पेंसिल्स इक्वल 96 रुपीज. फिर स्पेंड मनी फॉर 1 पेंसिल. दैट इज योर स्टेटमेंट. So now we are solving this. Spend money on 8 pencil equal to rupees 96. Spend money on 1 pencil equal to 96 divide 8. Spend money on 1 pencil. जब भी हमें 1 का फाइंड करना है, in that case you have to divide. So rupees 96 divide 8. तो हम 96 को 8 से डिवाइड करेंगे. So first of all 96 को और 8 को हमने प्रॉपर प्लेस पर लिखा डिवीजन के अंदर. 96 इज अ डिविडेंड एंड 8 इज अ डिवाइजर. तो 96 को तो हमने अंदर लिखना है और 8 को हमने बाहर लिखना है. नाउ टेक्स 10th प्लेस डिजिट दैट इज 9. तो अब 9 के नीचे हमें चेक करना है. तो 8 1 जा 8. तो हम 9 के नीचे 8 लिखेंगे. सो 9 minus 8 हमारा 1 आएगा. So bring down 6. So this number is now 16. तो अब हमें 16 को 8 के टेबल पे चेक करना है. तो 8 2 जा 16. So 6 minus 6 is 0 and 1 minus 1 is also 0. So answer is rupees 12. तो 1 पेंसिल की कॉस्ट जो है वो है 12 रुपीज़. क्वेश्चन नंबर 3. रीना हैज़ टू पुट 63 empty bottles in 3 crates. empty मतलब खाली. रीना ने 3 crates के अंदर 63 bottles को डाला है. How many bottles will she put in each crate? यहाँ पर हमें 1 का निकालना है. तो जब भी हमें 1 का निकालना है तो हमें डिवाइड करना है. सो bottles in 3 crates 63. बॉटल्स इन 1 crate 63 डिवाइड 3. तो हमें अब 63 को 3 से डिवाइड करना है. सो टेक्स 10th प्लेस डिजिट फर्स्ट. 3 2 जा 6. तो इसके नीचे हमारे पास 6 आएगा. सो 6 minus 6 इक्वल टू 0. सो ब्रिंग डाउन 3. नाउ 3 के टेबल पर 3 कहाँ पर आता है? 1 पे. तो 1 हमने क्वोशंट प्लेस में लिखा.
3 minus 3 आंसर आया 0. सो आंसर इज हियर bottles in one crate is 21 bottles. Now question number 4. A week has 7 days. एक वीक में 7 डेज होते हैं. How many weeks are there in 84 days? तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ वीक्स निकालने हैं. एक वीक में डेज 7 थे तो हमने लिखा डेज इन अ वीक 7 डेज, और टोटल डेज आपको गिवन है 84 डेज, और हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ वीक्स. तो जब भी हमें नंबर ऑफ वीक्स यानी कि यहाँ पर हाउ मैनी वर्ड दिया है तो हमें डिवाइड करना है. सो वी विल डिवाइड 84 बाई 7. सो 84 को हम अंदर लिखेंगे, 7 को बाहर. टेक्स टेंस प्लेस डिजिट दैट इज 8. अब 8 के नीचे क्या आएगा नंबर, 7 1 जा 7, तो हमने 7 लिखा. तो 8 माइनस 7 हमारे पास 1 आएगा. नाउ ब्रिंग डाउन 4. तो अब जो नंबर है वो 14 बन गया है. तो 7 के टेबल पर 14 आता है 2 पे, तो 2 को हमने क्वेश्चन प्लेस में लिखा, और 7 2 जा 14, तो 14 के नीचे हमने 14 लिखा, और उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा रिमाइंडर 0 आया. तो आंसर आया 12 वीक्स, यानी कि 84 डेज जो है वो हमारे 12 वीक्स में होते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. अब बस हैज़ 52 सीट्स. एक बस में टोटल सीट्स होती हैं 52. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज, यानी कि हमें नंबर ऑफ रोज निकालनी है. रोज मतलब लाइनें. इन द बस इफ ईच रो हैज़ 4 सीट. अगर एक रो में 4 सीट्स हैं तो यानी कि आपको यहाँ पर सीट्स दी हुई हैं 1 रो में, और हमें नंबर ऑफ रोज निकालनी है. सीट्स इन अ बस 52 सीट्स. सीट्स इन 1 रो इक्वल 4 सीट्स. टोटल नंबर ऑफ रोज 52 डिवाइड 4. तो हमें 52 को 4 से डिवाइड करना है. तो वी आर टेकिंग टेंस प्लेस डिजिट दैट इज 5. तो 5 के नीचे आएगा 4. 4 1 जा 4. सो 5 माइनस 4 हमारा आंसर आया 1. नाउ ब्रिंग डाउन 2. अब जो नंबर है वो हमारे पास बन गया 12. तो हमें 4 के टेबल पर 12 को चेक करना है, और वो आता है 3 पे. तो 3 को हमने क्वेश्चन प्लेस में लिखा, और 12 के नीचे 12 लिखा. सो 2 minus 2 is 0, and 1 minus 1 is also 0. So answer is 13 rows. Now question number 6. आदित्य हैज़ 92 टॉय कार्स. आदित्य के पास टोटल टॉय कार्स हैं 92. ही पुट्स दैम इक्वली इन 6 बॉक्सेस. और उसने 6 बॉक्सेस में इक्वली रखा है, यानी कि इक्वली डिवाइड किया है. तो यानी कि ये क्वेश्चन भी डिवाइड का है. तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए हुए 6. हाउ मेनी टॉय कार्स विल ही पुट इन ईच बॉक्स. हमें 1 बॉक्स में निकालना है कि 1 बॉक्स में उसने कितनी टॉय कार्स रखी हैं. हाउ मेनी टॉय कार्स आर लेफ्ट ओवर. और फिर हमें लेफ्ट ओवर निकालनी है. लेफ्ट ओवर मीन्स हमें रिमाइंडर फाइंड करना है. सो टोटल टॉय कार्स 92, नंबर ऑफ बॉक्सेस 6, और टॉय कार्स इन 1 बॉक्स हमें फाइंड करना है. तो हमने 92 को 6 से डिवाइड किया. तो 92 को अंदर लिखेंगे क्योंकि वो डिविडेंड है, और 6 को बाहर लिखा दैट इज डिवाइजर. तो अब हमने टेंस प्लेस का डिजिट लिया. तो 9 के नीचे आएगा 6 1 जा 6. 9 माइनस 6 3 आया. सो ब्रिंग डाउन 2. तो अब नंबर जो बन गया 32 आया. तो 6 के टेबल पर हमने 32 फाइंड करना है. 32 6 के टेबल पर नहीं आता, तो हमने 32 से छोटा नंबर लिखना है दैट इज 30. तो 6 5 जा 30 को हमने लिखा, 5 को हमने क्वेश्चन प्लेस में लिखा है, एंड 30 को 32 के नीचे. फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आया 2. सो टॉय कार इन 1 बॉक्स 15 है जो क्वेश्चन है, और लेफ्ट ओवर यानी कि आपका रिमाइंडर क्या था 2, तो वो हमारा लेफ्ट ओवर हो गया. सो दिस इज योर आंसर. In this way, you have to do all the sums. Thank you and have a nice day.